Hello everyone, good afternoon. This is Preetham Sharma, and today we are discussing some previous year's questions, and these are being discussed under PCS free warm-up course. And as you know, let me give you a brief introduction about this course, why we have started it. Since you know that PCS notification has come out with huge number of vacancies, 322 vacancies this time, and our batches have already started, and next batch is going to start from 15th of Jan. So in order to keep you engaged and of course keep you motivated towards a study, so we have started this course under which we shall be different faculty will be discussing multiple choice questions of previous years and some additional questions which can be probable in the respective subject. So with this spirit, let's continue. And today's topic is Indian Parliament, and the previous year's questions that have appeared from this particular topic, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या लेवल है क्वेश्चंस का और उन क्वेश्चन से हम और क्या क्वेश्चंस फॉर्मुलेट कर सकते हैं. So let's get started. The topic is Parliament. So this is the notification. 15 Jan is the next batch that is going to start, and that you already know about. That 322 posts have been notified by PCS, which I have already mentioned earlier. So here is the question number 1. It appeared in 2020. Question है, which of the following is not a provision of the Representation of People Act 1950? You know that हमारे पार्लियामेंट की फंक्शनिंग में और या फॉर दैट मैटर स्टेट लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ साथ दो बड़े इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं लॉज अप्लाई होते हैं, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंट इलेक्टोरल लॉज. उसमें एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 का 1950 का और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. तो 1950 के कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा प्रोविजन उसका नहीं. क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर है, तो पहली चॉइस गलत है क्योंकि ये सब कुछ प्रोवाइडेड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में. ठीक है. Allocation of seats in the House of the People, the State Legislative Assembly and the State Legislative Council. Number 3, delimitation of parliamentary assembly constituencies. Local authorities for purpose of election to the state legislative. Local authorities for the purpose of election to the state legislative council. तो इसमें कौन सा फीचर नहीं है? क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, बाकी सारे फीचर हैं. राइट. इनमें नॉट ए प्रोविजन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1950, बाकी सारे हैं. दिस इज 1951. नेक्स्ट 2018 का क्वेश्चन है, which two committees of the parliament has been described as the twin sisters committee. ठीक है. there are three important committees हमारी पार्लियामेंट की है, वो हम स्टैंडिंग कमेटीज भी कहते हैं. नंबर 1 is called as estimate committee, number 2 is called as public accounts committee and number 3 is called as committee on public undertakings. ठीक है. तो फर्स्ट टू कमेटी जो एस्टिमेट कमेटी है और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, इन दोनों कमेटीज को ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है. नेक्स्ट टाइम आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एस्टिमेट कमेटी है, राइट, इसकी मेंबरशिप क्या दोनों हाउसेस से होती है या सिर्फ ये लोकसभा की कमेटी है? तो आंसर लोकसभा की कमेटी होने का करेक्ट आंसर होगा. तो इसलिए इनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, लॉ कमेटी आगे जाने की जरूरत नहीं है. नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी इज डिस्क्राइब्ड एज द ट्विन सिस्टर. ठीक है. नेक्स्ट टाइम आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्टिमेट कमेटी का काम क्या होता है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम क्या होता है. तो इस टॉपिक पे भी आप फोकस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2018. Which one of the following is not a sufficient ground for convening a joint sitting of both the houses of the parliament? You know that under article 108 of the constitution, अगर दोनों हाउसेस के बीच में किसी बिल को लेकर डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करने का प्रोसीजर ले डाउन है आर्टिकल 108 में. ठीक है. राइट. उस प्रोसीजर को जॉइंट सिटिंग कहते हैं, जिसमें दोनों हाउसेस के मेंबर्स बैठते हैं
और जो जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग में मेजॉरिटी होती है उस मेजॉरिटी से बिल को, जो डिस्प्यूटेड बिल था, उसको पास किया जाता है। ठीक है, बट दिस अप्लाइज, नेक्स्ट टाइम आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि जॉइंट सिटिंग किस बिल के ऊपर नहीं हो सकती। तो आपने दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। एक तो मनी बिल पे, क्योंकि मनी बिल पे एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा की होती है, उस पर जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे भी जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, बोथ हाउसेस आर पास। Rejection of a bill by one house of the parliament when the other house has passed it, not a sufficient ground पूछा, इस पे होगा। Both houses have finally disagreed as to the amendments made in the bill, इस पे भी होगा। More than 6 months have elapsed from the date of the reception of the bill by the other house without the bill being passed by it. President has refused to give assent to the bill. That's very, very important. The moment bill is passed by both the houses, it goes to the president. Okay, suppose कोई बिल प्रेसिडेंट के पास पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। जॉइंट सिटिंग इन सर्कमस्टांस में ही हो सकती है। सिंपल वर्ड्स में, व्हेनेवर देयर इज एन डिसएग्रीमेंट, एक हाउस ने बिल को पास कर दिया, दूसरे हाउस ने उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया, एक हाउस ने अमेंडमेंट कर दी, दूसरा हाउस उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, राइट। इन या किसी हाउस में बिल 6 मंथ से पेंडिंग है, या 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक वो बिल पास नहीं किया है उस हाउस ने, तो ये सर्कमस्टांसेस जॉइंट सिटिंग के सर्कमस्टांसेस हैं। बट अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के पास उसकी प्रेसिडेंट साहब की असेंट के लिए पड़ा है, उसके ऊपर जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। तो सिंपल कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा है। तो लॉजिकली स्पीकिंग आप ये भी कह सकते हो कि द मोमेंट बिल इज विद द प्रेसिडेंट, ठीक है, इट मीन्स इट गोज टू द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर बीइंग पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। तो जॉइंट सिटिंग का कोई क्वेश्चन राइज या उसके ऊपर कोई डिसएग्रीमेंट का क्वेश्चन राइज हो ही नहीं सकता। तो इसलिए प्रेसिडेंट हैज रिफ्यूज टू गिव हिज असेंट टू द बिल। ठीक है, द फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 2018 again. Which of the following statement is or not correct? As per the provisions of the Constitution, the Council of Ministers is both collectively and individually responsible to Lok Sabha. As per the provisions of the Council of Ministers, both collectively and individually responsible to the Lok Sabha. It is absolutely correct statement. Article 75 में ये clearly लिखा है और उसका corresponding provision, ठीक है, you will be finding in under Article 164 of the Constitution for State Legislature. A censure motion must state the reason for its adoption. Number 3, a no confidence motion must set out the grounds on which it is based. Number 4, if no confidence motion is passed by the Lok Sabha, the Council of Ministers is bound to resign. ठीक है, तो इसमें से कौन इस which of the following statements is or not correct? ठीक है, as per the provision, correct number 1 is correct. A censure motion must state the reason for its adoption. ठीक है, ये भी ठीक है. A no confidence motion must set out the grounds on which it is based. It is also true, right? Is or not correct? इसमें से कौन सी correct नहीं है statement? No confidence motion is passed by the Lok Sabha. The Council of Ministers is bound to resign. This is also correct. This is also correct. ठीक है, तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि no confidence motion must set out the grounds on which it is based. A censure motion must state the reason. Yes, number 2. ठीक है, a censure motion must state the reason for it. censure motion में कोई रीजन नहीं स्टेट करना होता। अगर उसको censure motion एक किस्म का मोशन होता है जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिसिज्म इन्वोक करती है पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के हाउस है। तो 2 इज द रॉन्ग चॉइस, रेस्ट ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 2015 का क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफ कोर्स ऑल 3 कमिटीज, राइट, और फाइनेंशियल कमिटीज, बिकॉज इनवेरिएबली इन तीनों कमिटीज का काम गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना होता है। ब्रीफली अगर मैं आपको बताऊं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये जो CAG की रिपोर्ट होती है रिगार्डिंग द
expenditure of the government, either of the state government or the union government, उसको एग्जामिन करती है, ठीक है, सो दैट गवर्नमेंट की फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। एस्टिमेट कमेटी जो एस्टिमेट्स दिए होते हैं मिनिस्ट्रीज ने बजट के लिए, जो डिमांड करती है पार्लियामेंट, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी या उसकी स्क्रूटनी इंश्योर करती है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, इस नाम से ही पता लगता है, जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ठीक है, उनकी एक्सपेंडिचर के सिनेरियो को डिस्कस करती है। एंड नंबर 4, जॉइंट कमेटी, नॉट कमिटेड, जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल कमेटी, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कमेटी का कोई फाइनेंसिस के साथ लेना देना नहीं। तो ठीक है, ये फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 2015 का क्वेश्चन है, who among the following can attend meeting of both houses of the parliament while not being a member of either house? ये हम भली भांति जानते हैं कि द अटॉर्नी जनरल है, उसको ये स्पेशल प्रिविलेज होती है कि ही कैन सिट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट में जो डिस्कशन चल रही है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मगर क्योंकि ये किसी भी हाउस के, इधर लोकसभा और राज्यसभा, ये उसके मेंबर नहीं होते, इसलिए इनको किसी भी हाउस में वोट करने का अधिकार नहीं होता। पर ये प्रिविलेज इनको ज़रूर है, ये किसी भी हाउस में बैठ सकते हैं और वो सारी प्रिविलेजेस इंजॉय करते हैं जो एक मिनिस्टर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजॉय करता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। When it comes to union government, we have attorney general, right? When it comes to state government, we have his counterpart called as advocate general. Okay, solicitor general of India, no. Vice president of India, no. Comptroller and auditor general of India, attorney general of India, ये उनको स्पेशल प्रिविलेज होती है। नेक्स्ट टाइम आपको इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो प्रिविलेजेस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटर्स या मेंबर्स को देता है या मिनिस्टर्स को देता है, वो इनके अलावा और कौन एंजॉय कर सकता है इन प्रिविलेजेस कौन सी है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विद इन द हाउस, नो लाइबिलिटी फॉर द स्पीच वट एवर वन हैज स्पोकन, उसके लिए कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो सकते, राइट। तो ये प्रिविलेजेस अटॉर्नी जनरल को भी मिलती हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मिनिस्टर एंजॉय करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको इस कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार ये क्वेश्चन पूछा है 2015 में कि इनमें से कौन सा फंक्शनरी है जो दोनों हाउसेस की मीटिंग को अटेंड कर सकता है, मगर व्हाइल नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस, ठीक है, ईदर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको ये क्वेश्चन भी चाहे प्रिविलेज के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी किसी भी हाउस में बैठ सकता है मगर वोट नहीं कर सकता। अगर किसी प्रपोजल पे या किसी बिल पे वोटिंग हो रही हो तो किसी भी हाउस में वोट नहीं कर सकता। तो आंसर भी यही होगा, अटॉर्नी जनरल। 2015 का क्वेश्चन है, a person who is not a member of parliament can be appointed as a minister by the president for a maximum period of, very good question, right? This is also laid down under article 75 class 4 of the constitution, clearly लिखा है अगर कोई भी person who is not member of the house, right, he or she can be appointed as a minister but not more than 6 months, meaning that 6 month की एक्सपायरी से पहले पहले उस पर्सन को किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्शन से बने, ठीक है, चाहे वो नॉमिनेशन से बने, किसी भी हाउस की मेंबरशिप बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक टेम्पररी या अडॉक प्रोविजन संविधान में लिखा है कि कोई भी पर्सन बिना किसी हाउस का मेंबर हुए मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट, बट नॉट मोर देन 6 months. Who is not a member of parliament can be appointed as a minister by the president for a maximum period of 6 months. और ये हम सेवरल टाइम ये ऑब्जर्व करते हैं, राइट।
अगर वो 6 मंथ्स के अंदर वो पर्सन किसी भी हाउस का, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का, सेम अप्लाइज टू द स्टेट लेजिस्लेचर, राइट, अगर वो मेंबर नहीं बनते तो उनको रिजाइन करना पड़े। ठीक है, तो फोर्थ इज द करेक्ट। 2014 का क्वेश्चन है जी, which of the following comprises the electoral college of the vice president of India? You know that कि हमारी पार्लियामेंट के कुछ इलेक्टोरल फंक्शंस भी हैं। एक फंक्शन पार्लियामेंट का इलेक्टोरल फंक्शन ये है कि ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, ठीक है, बट ओनली डिफरेंस इज दैट कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली। व्हेन इट कम्स टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, जो कि सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन है नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स, इनकी इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट के सभी मेंबर वोट करते हैं। तो उनका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो पार्लियामेंट के सभी मेंबर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज में जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, नॉमिनेटेड नहीं। हमें पता है राज्यसभा 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, वो वोट नहीं कर सकते, राइट। वेराज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट कर सकते हैं, मींस वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट हो। तो यही क्वेश्चन है। मेंबर्स ऑफ लोकसभा कंप्राइज द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, चूज द करेक्ट। ठीक है, तो आपने याद रखना है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में एक और डिफरेंस है प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर भी होते हैं, दैट इज एमएलएस भी होते हैं, वेराज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में वो मेंबर नहीं होते। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि हु कंप्राइजेस, तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा 1 and 2 ओनली, 1 and 2, 1 is 1 first is the correct, the members of Lok Sabha and members of Rajya Sabha constitute the electoral college of vice president of India। अगर प्रेसिडेंट पूछा जाए तो आपने ये कहना है कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, इधर आ जाएगा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी वोट नहीं करते, मींस वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं, राइट। इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज लिमिटेड। ये क्वेश्चन आप एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ सकते हो, यूनियन एग्जीक्यूटिव में और पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हो, बिकॉज वीटो पावर जो प्रेसिडेंट की है वो एक्चुअली एक लेजिस्लेटिव पावर है। ठीक है, बिकॉज कोई भी बिल जब दोनों हाउसेज से पास होता है तो प्रेसिडेंट के पास जब वो असेंट के लिए आएगा, राइट, उसके ऊपर उस बिल के ऊपर वो वीटो कर सकते हैं, राइट। द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज लिमिटेड बिकॉज if after reconsideration the parliament passes the same bill again and sends it back to the president, then the president has to give his assent to the bill। ठीक है, बिल्कुल सही है ये करेक्ट स्टेटमेंट। इसको हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। इंडिया के प्रेसिडेंट के पास 3 किस्म की वीटो पावर्स हैं एज कम्पेयर टू यूएस प्रेसिडेंट, जिसके पास एक एक्स्ट्रा वीटो पावर है जिसको हम कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। तो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास एक तो एब्सोल्यूट वीटो की पावर है, दूसरी राइट सस्पेंसिव वीटो की पावर है, एंड नंबर 3 इज व्हाट वी कॉल एज पॉकेट वीटो की पावर। ठीक है, तो ये सस्पेंसिव वीटो होता है जब बिल दोनों हाउसेस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन होने के लिए, असेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट उसको वापस पार्लियामेंट को भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन। बट अगर पार्लियामेंट उसको दोबारा रिकंसिडर करके सिंपल मेजॉरिटी, जिस रिकंसिडर का मतलब सिंपल मेजॉरिटी होता है, वापस प्रेसिडेंट के पास भेजती है तो प्रेसिडेंट shall means mandatory, shall be bound to give his assent to the bill. The first is the correct. Number 2, there is no mention in the constitution about the time limit within which the president must send the bill back for reconsideration। Okay, since there is no time limit in USA के constitution में 10 दिन लिखे हुए हैं, within 10 days US president has to give his assent to the bill। ठीक है, the moment 10 days expire वो bill
पॉकेट वेटो हो जाएगा। इंडिया के केस में भी पॉकेट वेटो एक्सरसाइज करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट कर सकते हैं, उनके पास पावर है, बट सिंस टाइम लिमिट कोई मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितनी देर के अंदर प्रेसिडेंट साहब को बिल साइन करके असेंट अपनी देनी है उस बिल पे, देयर इज नो टाइम लिमिट मेंशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? देयरफॉर two statements are also correct. Which of the following is correct? So both statements 1 and 2, 3 is the correct answer. Both statements are correct. Okay, next. What is the following statements regarding lapsing of bills in the parliament? Okay, इसके लिए सिंपल फार्मूला आप समझ सकते हो कि बिल किस सर्कमस्टांस में लैप्स होते हैं। तो आपने याद करना है, एक सिंपल फंडा याद रखना है, जो बिल लोकसभा में पेंडिंग होगा वो बिल लोकसभा के डिसोल्यूशन के साथ लैप्स हो जाएगा, ठीक है? जो बिल लोकसभा ने पास करके राज्यसभा को भेजा होगा, अगर राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया है, लोकसभा ने उसको पास किया था, अगर इन द मेन टाइम लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वो बिल भी लैप्स हो जाएगा। ये जाता है, जो बिल राज्यसभा में पेंडिंग होगा मीन्स वो वहीं से ओरिजिनेट हुआ और अभी ही पेंडिंग है, अभी लोकसभा ने उसको टच भी नहीं किया, अभी उसके ऊपर कोई डेलिब्रेशन डिस्कशन लोकसभा ने नहीं की है, मगर इन द मेन टाइम लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, वो बिल लैप्स नहीं होगा। फोर्थली, जो बिल प्रेसिडेंट साहब के पास पड़ा होगा उनके असेंट के लिए, राइट, इन द मेन टाइम लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, वो बिल भी लैप्स नहीं होगा, ठीक है? जहाँ जॉइंट सिटिंग के लिए वो बिल भेजा हो वो बिल भी लैप्स नहीं। बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। तो ये मैं आपको बता, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि प्रोरोगेशन के सर्कमस्टांसेस में, दिस इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटेन में प्रोरोगेशन के साथ भी बिल लैप्स हो जाता है। प्रोरोगेशन पहले आपने समझना, प्रोरोगेशन कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस। पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं उसकी टर्मिनेशन को प्रोरोगेशन कहा जाता है। तो हमारे देश की पार्लियामेंट में प्रोरोगेशन की वजह से बिल लैप्स नहीं होते। तो रिगार्डिंग इस statement regarding lapsing of bills in the parliament, bill pending in the parliament lapse by reason of the prorogation of the house, this is incorrect statement, क्योंकि प्रोरोगेशन की वजह से बिल किसी भी हाउस में पड़ा होगा, इन द मीन टाइम यू नो उस हाउस का सेशन कंप्लीट हो गया या ओवर हो गया या टर्मिनेट हो गया, वो बिल लैप्स नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट सेशन में उसको दोबारा टेकअप किया जाएगा। लैप्स होता है सिर्फ, मैंने आप वो सर्कमस्टांस बताया, जो बिल लोकसभा में पेंडिंग है या जो बिल लोकसभा ने पास किया है राज्यसभा में पेंडिंग है, वो बिल लैप्स होगा विद द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नंबर 2, बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा, नॉट पास्ड बाय, ठीक है? हैड इट बीन पास्ड बाय लोकसभा, अगर यहाँ अदर वे राउंड स्टेटमेंट होती, जो बिल राज्यसभा में पेंडिंग है मगर लोकसभा ने उसको ऑलरेडी पास किया है, वो बिल लैप्स हो जाता, बट यहाँ लिखा है नॉट पास्ड बाय लोकसभा, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, hence only 2 is the correct statement. So guys, this is all about for today, right? I hope you found this small piece of video informative, and if you have any queries regarding this course, you can hit the button, that is the information given the link, and rest that you already know that our batch is coming up again on 15th January, and this is the right opportunity for you to seize the moment, because this is lifetime opportunity wherein the Punjab Public Service Commission has notified such a humongous number of posts, right? So stay tuned for this free warm-up course, multiple choice questions from the previous years, right? Till then, bye-bye. Thank you so much.